Hello, good morning everyone. Look, as I told you that we will start exercise 10.2 today. But in exercise 10.2, I think it is very difficult to draw the figure over here. So we will discuss exercise 10.2 and school will open और हम इसको डिस्कस कर लेंगे अभी. आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3. ठीक है. Exercise 10.3. Find the areas of the rectangles whose sides are 3 cm and 4 cm. First of all, you have to know the area. Exercise 10.3 हम लोग स्टार्ट करेंगे. Sorry, ये पेन ऐसा कर सकते हैं. 10.3 यूज करूंगा हम लोग. Question number 1 is find the areas of the rectangle whose sides are 3 cm and 4 cm. Look, area of rectangle क्या होता है? एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ तुम्हें. I think you already know about it. Area of rectangle is equal to length into breadth. ठीक है. Area of rectangle is equal to length into breadth. Now it is given 3 centimeter into 4 centimeter, so 12 centimeter square, or you can say that 12 square centimeter. Question number B of this, 12 meter and 21 meter, which is equal to 12 meter and 21 meter is equal to 12 into 21. Now multiply 12 into 21 and ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर. This will your answer. Multiply 12 with 21 and you will get your answer. Now you have to solve question number C and D, third and fourth part of question number 1. Okay. The second question is find the area of the squares whose sides are. Find the area of the square whose sides are 10 centimeter. Means it is given. The question number 1. This sides of a square is given. तो हमें find करना है area. So first of all you have to know that the formula area of a square. Area of a square is equal to side into side. Or you can say that area of a square is equal to side square. So area of square side is given 10 centimeter, to 10 into 10 which is 100 centimeter square. Now question number B part of this question. The B part of this question is 14 centimeter. 14 centimeter is equal to area of a square, which is equal to side into side. So 14 into 14 means multiply करो 14 into 14 कितना होता है 196. नहीं पता मुझे. मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लिखना है और इसकी जो यूनिट होगी दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. 5 मीटर स्क्वायर का ओरली आंसर कर दो. एग्जाम में ओरली मत कह देना कि सर हमें आता था इसलिए लिखा नहीं. Now question number 3. The length and breadth of 3 rectangles are as given below. The length and breadth of 3 rectangles are as given below. Which one has the largest area and which one has the smallest? So for this we have to find area of all the rectangles. फोर मीटर एंड 14 मीटर. ठीक है. तो पहले इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं. फर्स्ट वी विल फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो 9 into 6 मीटर स्क्वायर, देन 54 मीटर स्क्वायर, और 17 into 3 मीटर स्क्वायर, 51 मीटर स्क्वायर, 56 मीटर स्क्वायर.
मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आपको स्टेप करना है, ठीक है। तो किसका एरिया ज्यादा होगा, मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताओ। The area and which one is the smallest? You have to also tell that which rectangle has the smallest area. Fourth question: the area of a rectangular garden. The area of a rectangular garden. एक बार देख लो कि चल रहा है कि नहीं, ये भी प्रॉब्लम होती है। थैंक गॉड चल रहा है। Now area of rectangle. Question number 4. Question number 4. Area of rectangular garden 50 meter long is means area is given which is 300 square meter. Long means length, ये length given है 50 meter. We have to find width. देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। इस क्वेश्चन को पढ़ने से ही तुम्हें आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग। उस गार्डन का जो कि 50 मीटर लॉन्ग है उसका एरिया इज 300 स्क्वायर मीटर। अगेन रीड द क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। 300 स्क्वायर मीटर। So it is given here 300 square meter area, long 50 meter, width इतना दिया हुआ है। So उन्होंने पूछा रेक्टेंगुलर गार्डन है तो हमको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है तो वी विल राइट 300 in place of area of rectangle. It is given because area of rectangle is given, it is 300 and this is equal to length. Length क्या होगा हमारा, length is 50 meter and breadth हमें find करना है। तो we will represent, let breadth is represented by b. So b is equal to क्या हो जाएगा 300 upon 50 which is equal to 6। ठीक है, तो हमारी ब्रेथ कितना हो जाएगा 6 मीटर, पता चल गया। अगर इफ यू वांट टू चेक योर आंसर इज करेक्ट और इनकरेक्ट, सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट मल्टीप्लाई लेंथ इनटू ब्रेथ। व्हेन वी मल्टीप्लाई लेंथ इनटू ब्रेथ 50 into 6 we will get 300 square meter. It means our answer is correct. Question number 5. Question number 5. Question number 5 is what is the cost of tiling a rectangular plot of land? What is the cost of tiling a rectangular plot of land 500 meter long and 200 meter wide at the rate of 8 rupees 8 per 100 square, no, 8 per 100 meter square, 8 per 100 meter square per 100 square meter. The question is what is the cost of tiling a rectangular plot of land 500 meter long and 200 meter wide at the rate of rupees 8 per 100 square meter. देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड। तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि वो तुम्हारा प्लॉट जो है वो 500 मीटर लॉन्ग है और 200 मीटर वाइड है, उसका हमें पहले एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या होगा 5 2 10 0 0 0 0 1 लाख। ओके, 1 लाख मीटर स्क्वायर वो एरिया हो रहा है। वो फिर उसमें पूछ रहा है उसमें टाइलिंग करने का क्या कॉस्ट आएगा। अगर जो टाइलिंग का रेट चल रहा है वहां पे वो चल रहा है रुपीस 8 पर 100 स्क्वायर मीटर, मींस 100 स्क्वायर मीटर के लिए रुपीस 8 रुपए ले रहे हैं, मींस फॉर पर 100 स्क्वायर मीटर रेट इज रुपीस 8।
सो 1 स्क्वायर मीटर के लिए कितना रेट होगा, 8/100। सो 1 लाख स्क्वायर फीट के लिए कितना होगा, स्क्वायर मीटर के लिए कितना होगा, 8/100 इंटू 1 लाख, 0 0 0 0 कट गया, 8000 कितना आएगा, 8000। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग क्या आएगी, 8000। Because it is word problem, so you have to write a statement also. Okay, so I am not going to discuss, I am not going to tell you this statement. How can you write the statement? You will write the statement for this question. Okay, now question number 6. A tabletop measure 2 meter by 1 meter 50 centimeter. ठीक है, इसको मैं रख देता हूँ। A tabletop measure 2 meter by 1 meter 50 centimeter। जो ये 2 मीटर by 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, इसका मतलब होता है कि लेंथ 2 मीटर है, ब्रेथ 1, मतलब एक साइड उसकी 2 मीटर है और दूसरी साइड हमारी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। देखिए इस क्वेश्चन में एक शर्त है, उन्होंने बोला कि व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। वो टेबल टॉप है, इसका मतलब अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग है, इसका मतलब रेक्टेंगल है, तो मुझे पता है कि पहले ये 2 मीटर है, हमें मीटर में ही इसका मीटर में ही वैल्यू निकालनी है, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करोगे होगा 1.50 मीटर। 50 सेंटीमीटर को जब तुम मीटर में चेंज करोगे तो आएगा 0.50। ये हमने कन्वर्ट पढ़ा हुआ था इसके पहले। 50 का आएगा 150, तो टोटल आ जाएगा 1.50 मीटर। अब इन दोनों पे हम निकाल लेंगे मल्टीप्लाई, एरिया निकाल लो। एरिया तुम्हारा हो जाएगा 2 0 0, 2 5 10, 1 कैरी, 2 1 2 1 3, 3.0 मीटर स्क्वायर, और यू कैन से दैट 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर नहीं समझ में आ रहा है, फिर से सुनो। लेंथ दिया गया, ब्रेथ दिया गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज दिस इनटू मीटर। हमने मीटर में चेंज किया तो वी विल गेट 1.50 मीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। या खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह से इसको आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 कह रहा है फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। फिर से देखो 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। तो पहले हम फ्लोर का एरिया निकालो, फ्लोर का एरिया ऑफ फ्लोर निकालो। एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 5 इंटू 4 मीटर स्क्वायर। ये लिखना मत भूलना बेटा, हर चीज स्क्वायर में रह गई, ये हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि a square carpet of side 3 meter is laid on the floor. Find the area of the floor that is not carpeted. So first of all you have to find area of that square carpet. Area of that square carpet which is 3 meter into 3 meter, 9 मीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन वो कह रहा है कि एक इतना बड़ा एरिया है, रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया है, जिसमें हमने एक स्क्वायर कारपेट बिछा दी। क्लियर है, एक फ्लोर है जिसमें हमने एक स्क्वायर कारपेट बिछा दी। तो फ्लोर का जो एरिया है वो है 5 और 4, और ये है तुम्हारा 3। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि ऐसा चीजें बताओ वो जो एरिया कारपेटेड नहीं है उसकी वैल्यू आप निकालिए। एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, तो यही एरिया जो है जो कारपेटेड नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इसका एरिया में से इसका एरिया माइनस कर देंगे, हमें ये एरिया मिल जाएगा। नाउ एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, यू विल राइट द स्टेटमेंट। एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, दैट इज नॉट carpeted is equal to 20 meter square minus 9 meter square is equal to 11 meter square. Clear? This is question number 8. Question number 9.
क्वेश्चन नंबर 9, 5 square flower beds each of sides 5 square flower beds each of side 1 meter square are 1 meter are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide. What is the area of the remaining part of the land? देखो उन्होंने बोला कि एक हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लैंड है जिसपे 5 स्क्वायर फ्लावर बेड ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड. सो आपको रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना है. वेरी सिंपल. तो पहले अगर ये बताओ एरिया ऑफ वन फ्लावर बेड कितना है. एरिया ऑफ वन फ्लावर बेड कितना होगा भाई. 1 दिया है ना, 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर होगा. तो एरिया ऑफ 4 है, 5 स्क्वायर बेड कितना होगा. 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स कितना होगा 5 मीटर स्क्वायर. ये तो तुम्हें निकल गया. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड कितना होगा. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड कितना होगा 5 इंटू 4 which is 20 मीटर स्क्वायर. तो वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड. तो रिमेनिंग पार्ट निकालो. 20 मीटर स्क्वायर माइनस 5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 मीटर स्क्वायर. क्लियर. अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में तुम्हें ओरली समझा रहा हूं, इसको तुम्हें खुद करना है. क्वेश्चन नंबर 10, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरियाज. द मेजर आर गिवन इन सेंटीमीटर. सारे जो मेजरमेंट इसमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में वो तुम्हारे सेंटीमीटर में गिवन है. तो यू हैव टू स्प्लिट दिस इनटू रेक्टेंगल्स. जैसे पहला वाला देखो तुम्हारा मैं बता दे रहा हूँ, एक बार समझा दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं कराऊंगा मैं. इन्होंने कहा है कि इसको आपको पहले स्प्लिट करना रेक्टेंगल्स में, तब उसका एरिया मेजर करना. देखो जैसे ये मैंने ऐसे कर दिया, रेक्टेंगल में हो गया. नहीं अब तुम्हें पता करना होगा ये वाली साइड, तो तुम आसानी से पता कर लोगे. यहाँ तक तुम्हें साइड दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ है, ये वाली साइड दिया हुआ है 2. तो ये दोनों मिला के हो जाएगा ये पूरी साइड तुम्हारी. अच्छा ये पूरी तुम्हारी साइड कितनी हो जाएगी. और यहाँ तक तुम्हारी साइड दिया है ये 3. तो ये 4 माइनस 3 यानी ये 1 होगी, 1 प्लस 2. इस तरह से तुम करके चीजें निकाल लोगे. ठीक है. यहां से तुम ऐसे कर सकते हो, मतलब इसको तुम्हें रेक्टेंगल में तोड़ना और रेक्टेंगल में स्प्लिट करके इसकी वैल्यू निकालनी. तो ये क्वेश्चन देखो, इसको ये मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा सा होमवर्क में मैथ्स में मिलना चाहिए ना. अभी समझो मैंने इस क्वेश्चन में क्या बताया, कुछ नहीं बताया. मैंने सिर्फ इतना बताया कि आपको इसे रेक्टेंगल बना के उसको स्प्लिट करना है, फिर उसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है. तो अभी ये सारी चीजें तुम्हें करने की कोशिश करो, एंजॉय करो, मैथ्स के साथ खेलो. नहीं आएगा तो फिर हम लोग इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और जरूर करेंगे. ठीक है. ये सारे क्वेश्चन देखो 10, 11, 12 ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है. परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है. खुद आप इसको कोशिश करो सॉल्व करने की और हम लोग इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 12 हम आज भी डिस्कस कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस करो, आएगा ये. ठीक है. कोशिश करो 10, 11, 12 करने की. ऑल द बेस्ट. एंड 10.2 के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आप लोगों के लिए. we will discuss exercise 10.2. ठीक है. ये हम लोग डिस्कस करेंगे जल्दी. ऑल द बेस्ट.